हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. It will be interesting for you to know that some of the political right that we enjoy today are the direct outcome of two very important revolutions that are occurring in the later part of 18th century. They play a crucial role in the shaping of the modern world, and these were American Revolution and the French Revolution. Through this revolution, people accelerate there is a right and indeed exploitation. There is a American war and independence. Around the 16th century, many Europeans had studied in America because of religious is a precaution in England, and some of them were also attracted by the economical opportunities. They had formed 30 colonies which had local assemblies to be settled their problem. And these colonies were suffering due to the British economic policy of mercantilism, and through which they tried to regulate colonial commerce in a British interest. The colonies were not promoted to be set up the industry as it would be result in the competition with there is a British industry like iron, textile. They had to be export of sugar, tobacco, and the cotton only to England at the price determined by the mother country England, and this is a procured position for a British American colonies. By the 18th century, the war with the France and the Indians were providing very expensive for a Britain. She needed to money to fight, and this war was done by the collecting a tax from the American colonies. In 1765, the British Parliament passed the Stamp Act on the all business transactions like officially document is a deed, metrogases, and newspaper and pamphlets. The revenue was used to pay the cost of maintaining 10,000 British troops of America. The act was opposed by the colonialists, and riots broke out in colonial port cities. The colonial assembly passed resolutions against the Stamp Act. The British Parliament had to repeal the Stamp Act in 1766. However, the Parliament continued the tax on tea. On 16 December 1773, some Americans resigned as their natives India descended upon their three ships of East India is a company and dumped their tea into the sea. This incident is now as the Boston Tea Party. The Boston Tea Party there is the most important incident. There are many topics come to the exam. The Parliament closed the port of Boston, but their tracks was the set of the American war is independent. The representative of the 30 colonies is called to the meeting of First Continental Congress as a Philadelphia in the 1774, and the appealed to the King of England not be imposed the taxes without their consent. The king regarded this as an act of the rebellions and declared war, and this led to the fight and finally to the declaration of independence. On 4th July 1776, at the Congress at the Philadelphia, which proclaimed there is independence from Great Britain and formation of cooperative union. It inspired the world wars with their emphasis on equality, right to the life, liberty, and pursuit of happiness. The Bill of Rights granted many of freedoms such as freedom of speech, press, religious, and justice under the law. The American Revolution was struggled by which there are 13 American colonies
is born independent from the Britains and give a birth to be a nation, and that is now is called to the United States of America, mean USA. There is the most important for here. The American Revolution was taken by the which there are 13 American colonies and born independent from a Britain and give a birth to be a nation that now is called to the United States of America, mean US. उसके पश्चात आता है आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध। देखिए, कहते हैं अमेरिका आज के समय जो है विश्व में सबसे पावरफुल शक्तिशाली है, लेकिन अमेरिका का भी वो दौर था जब वो गुलामों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था और गुलामी के दास्ता से जो है गुजरा। तो अमेरिका भी जो है आज़ादी के लिए हर संभव कोशिश किया और संघर्ष जो है कामयाबी में बदल गया। यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कुछ राजनीतिक अधिकार हैं जो हमें आज मिलते हैं, वो दो बहुत महत्वपूर्ण क्रांति की देन है जो 18वीं सदी के अंत में हुआ था। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आधुनिक विश्व के निर्माण में, और ये है अमेरिका की क्रांति और फ्रांस क्रांति। कहते हैं अमेरिकी क्रांति और फ्रांस क्रांति वो दो महत्वपूर्ण क्रांति है जो लोगों के जीवनचर्या को बदल दिया, उनको जो है बहुत से अधिकार जो है दिलाने में जो है योगदान दिया, और इस क्रांतियों के माध्यम से लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो है अमेरिकी क्रांति और फ्रांस क्रांति को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है विश्व के लिए। देखा जाए तो 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसे थे। ये तो आपको भली भांति पता ही है कि 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न होती थी लोगों के साथ। कहाँ? इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में। आपको पता है कि 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड आज़ाद भी हुआ, क्योंकि उस समय धार्मिक उत्पीड़न किया जाता था उनके साथ। तो ये सारे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से दुखी थे और यूरोपीय अमेरिका में जाके बस गए, यानी वो अपनी जगह को छोड़ के यूरोपीय अमेरिका में जाके बस गए, और उनमें से कुछ आर्थिक अवसरों से आकर्षित भी थे। देखिए, सभी धार्मिक से प्रेरित नहीं थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो आर्थिक अवसरों से आकर्षित थे उस क्षेत्र के, और उनमें जो है 13 उपनिवेश थे जो स्थानीय विधानसभाओं द्वारा अपनी समस्याओं का निपटारा किया करते थे। वणिकवाद की दृष्टि से आर्थिक नीति लागू भी की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने हित में उपनिवेशिक वर्जन से विनियमता करने की कोशिश करते थे, और उपनिवेशों का उपयोग जो है स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी उस समय, और उन्हें लोहा और कपड़े जैसे ब्रिटिश माल खरीदने पड़ते थे मजबूरन, और वो केवल इंग्लैंड द्वारा निर्धारित कीमत पर ही चीनी, तंबाकू, कपास आदि का निर्यात करते थे। अब देखिए, इंग्लैंड जो कीमत निर्धारित करती थी उसी कीमत पे जो है निर्यात किया करते थे। तो ये जो था जबरन थोपा गया रूल रेगुलेशन थी, जो कि सही नहीं था, और जिसने ब्रिटिश अमेरिका उपनिवेश को विरोध के लिए उकसाया भी, और इस वजह से जो है ब्रिटिश अमेरिका उपनिवेश को काफ़ी विरोध के लिए जो है उकसाया गया। और देखा जाए 18वीं सदी तक फ्रांस के साथ और भारत में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हो गए। 18वीं शताब्दी तक जो है फ्रांस के साथ और अमेरिका में युद्ध इंग्लैंड के लिए बहुत महंगे साबित हुए, और इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और उसे अमेरिका उपनिवेशिक करों के द्वारा पूरा किया जाता था। तो कहते हैं कोई भी देश का जो हाल होता है खराब, उनका कारण कहीं ना कहीं युद्ध ही होती है, और लोग फिर भी युद्ध से जो है परहेज़ नहीं करते हैं। कहते हैं अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो युद्ध का जो है सहारा लेते हैं। लेकिन मेरा एक विचार है कि युद्ध जो है आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से न जाने कितने जो है जान मान की हानि होती है, कितने जो है अपने माता पिता को खो देते हैं, कितने जो होते हैं विधवे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है युद्ध। इसलिए युद्ध कभी भी आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो 1765 में ब्रिटिश सरकार संसद ने सरकारी दस्तावेज पर क्रमबद्ध समाचार पत्रों और जो है पर्चों की तरह सभी व्यापार लेन देन का जो है स्टैम्प जो है अधिनियम पारित कर लिया, और राजस्व को अमेरिका में 10,000 ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल भी किया गया था। अधिनियमों का उपनिवेशक द्वारा विरोध भी किया गया, क्योंकि ये विरोध जरूरी था। दंगे ने उपनिवेशिक बंदरगाह शहरों को तबाह करके रख दिया, और उपनिवेशिक विधानसभाओं ने जो है स्टैम्प जो है अधिनियम के खिलाफ
संकल्प पारित कर दिया। ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टाम्प अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ब्रिटिश संसद ने 1766 के स्टाम्प अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया। हालांकि संसद ने चाय पर कर जारी रखा, चाय पर जो है इन्होंने कर उस समय जारी रखा। और 16 दिसंबर 1763 को ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाज़ों पर चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि संसद के द्वारा जो है टैक्स को जारी रखा। जिस कारण 16 दिसंबर 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जहाज़ों के चाय के जो था समुद्रों में फेंक दिया। और इस घटना को जो है बोस्टन की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वेस्टर्न की चाय पार्टी क्या थी। तो वेस्टर्न की चाय पार्टी का अर्थ था कि ईस्ट इंडिया कंपनियों के द्वारा जब वहाँ पर संसद के द्वारा जो पैसे बढ़ा दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 जहाज़ों के चाय को जो है समुद्र में फेंक दिया। और इसी को जो है हम वेस्टर्न की चाय पार्टी के रूप में जाना जाता है। संसद में वेस्टर्न के बंदरगाह को बंद कर दिया गया, लेकिन अमेरिका की आज़ादी के लिए युद्ध की शुरुआत उसी समय हो गई। जब बंदरगाह को बंद कर दिया गया तभी जो है अमेरिका की आज़ादी के लिए युद्ध जो है शुरू हो गया। देखें तो 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस के बैठक बुलाई। यानी पहला जो है फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस की जो है बैठक बुलाई गई और इंग्लैंड के राजा से अपील की गई कि उनकी जो है सहमति के बिना करों को लागू न करें, क्योंकि उस समय सहमति बन गई कि उनके बिना ये कर को लागू नहीं किया जाए। और राजा ने इसे विद्रोह माना, राजा ने जो है इसे विद्रोह माना और युद्ध की घोषणा कर दी। लड़ाई के अंत में क्या हुआ? 4 जुलाई 1776 में जो फिलाडेल्फिया की कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता और एक सहकारी संघ की जो है गठन की घोषणा कर दी। इसमें समांतर पर जोर देने के साथ पूरी दुनिया के जीवन स्वतंत्रता और जो है खुशी से रहने के लिए प्रेरित भी किया गया। और विधायक ने भाषण, प्रेस, धर्म और कानून के तहत न्याय की स्वतंत्रता प्रदान भी की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधायक ने भाषण के द्वारा प्रेस, धर्म और कानून को जो है न्याय की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। यानी भाषण, प्रेस और धर्म को जो है बिल्कुल ही स्वतंत्र कर दिया उस समय। और अमेरिकी क्रांति एक संघर्ष था जिसे 13 अमेरिकी उपनिवेश के ब्रिटेन से आज़ादी मिली और एक राष्ट्र को जन्म दिया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम दिया। यानी यहीं से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है पुण्य जन्म हुआ।